जी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 38 पढ़ेंगे मेरे, नहीं? जी जी। 38 नहीं। हम्म, ओके। चलो थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं, आधा मिनट। स्टार्ट करते हैं। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम्म। तो 38 से पढ़ो, स्टार्ट। जी। एतद एतद ईश एतद ईश नमीशस्य प्रकृति स्तु अपि तद गुणैः न युज्यते सदात्म स्थैर्यथा बुद्धि स्थिदाश्रया। हम्म। Translation. हम्म। This is the divinity of the personality of Godhead. He is not affected by the qualities of the material nature, not even though he is in contact with them. Similarly, the devotees who have taken shelter of the Lord do not become influenced by the material qualities. In the Vedas and Vedic literature, it is affirmed that in the divinity there is nothing material. He is transcendental, nirguna, the supreme cognizant. Hari, or the personality of Godhead, is the supreme transcendental person situated beyond the range of material affection. These statements are also confirmed even by Acharya Shankara. One may argue that his relation with the goddess of fortune may be transcendental, but what about his relation with the Yadu dynasty, being born in that family, or his killing the non-believers like Jarasan and other asuras directly in contact with the modes of material nature? The answer is that the divinity of the personality of Godhead is never in contact with the personality of material nature in any circumstances. Actually, he is in contact with such qualities because he is the ultimate source of everything, yet he is above the action of such qualities. He is known, therefore, as Yogeshwara, or the master of mystic power, or in other words, the all powerful. Even his learned devotees are not affected by the influence of the material modes. The great six Goswami of Vrindavan all came from greatly rich and aristocratic families, but when they adopted the life of mendicants at Vrindavan, superficially they appeared to be in wretched conditions of life, but factually they were the richest of all in spiritual values. Such Maha Bhagavatas or the first grade devotees, although moving amongst men, are not contaminated by honor or insult, hunger or satisfaction, sleep or wakefulness, which are all resultant actions of the three modes of material nature. Similarly, some of them are engaged in worldly dealings, yet are unaffected. Unless these neutralities of life are there, but cannot be considered situated in transcendence. The divinity and his associates are on the same transcendental plane, and their glories are always sanctified by the action of Yogmaya, or the internal potency of the Lord. The devotees of the Lord are always transcendental, even if they are sometimes found to have fallen in their behavior. The Lord emphatically declares in the Bhagavad Gita that even if an unalloyed devotee is found to be fallen to the previous material contamination,
he is nevertheless to be accepted as fully transcendental because of his being engaged 100% in the devotional service of the Lord. The Lord protects him always because of his rendering service unto him, and the fallen conditions are to be considered accidental and temporary. They will vanish in no time. ये यहाँ जो इन्होंने बताया है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जैसे मान लीजिए हम 10 स्टेप्स गॉड की तरफ चले और फिर किसी वजह से हम उसमें आगे नहीं चल पाए, या हम अपनी मतलब सेंसेस में इन्वॉल्व होने की वजह से बैक हो जाते हैं, लेकिन जो हम 10 स्टेप चलते हैं वो जो है वो एक सॉलिड चीज है जो हमने कर लिया, उनके इम्प्रेशन हमारी सोल पे रहते हैं जो हमको आगे बढ़ने में हमेशा मेरी मदद करते हैं। हाँ, मतलब दे आर नेवर लॉस्ट, ये तो भगवान ने कई 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 दे आर नेवर लॉस्ट तो वो तो कहा ही है। अब यहाँ पे वो एक और चीज कह रहे हैं, और दूसरा मेरे को डाउट है। एक वो ये चीज कह रहे हैं कि अगर आप कर्म कर रहे हो बिकॉज ऑफ सेंसेस के ग्रिप में आ जाने की वजह से अगर आप एक बार गिर भी जाते हैं तो फिर भी कर्म है, मतलब यू यू आर नेवर कंसिडर्ड फॉलन। अब अगर सपोज करिए जो एक एस्पायरिंग डिवोटी है, अगर किसी भी वजह से वो करता भी जा रहा है, जो मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ, और बीच बीच में वो अपने सेंसेस में की ग्रिप में आ जाने पे बीच बीच में गिर जाता है, फिर कदम उड़ जाता है, फिर आगे बढ़ता है, ट्राई करता है, तो उसको भी क्या कर्म है इस टाइप की चीज, मतलब इस टाइप का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जिया जी। जो आपके वृंदावन जाने वाली बात है, वो एक बार मैंने अपने गुरु जी से पूछा था कि मैंने कहा कि भगत जी मैं सोचती हूँ कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगी तो मैं वृंदावन में जाके किसी आश्रम में रहूंगी। मतलब मैंने बंदा नाम नहीं लिया था, मैंने उनसे कहा था कि मैं किसी धार्मिक आश्रम में रहूंगी, सामने जाकर आश्रम में रहूंगी। हाँ जिया जी उन्होंने कहा था कि बेटा भगवान की आज्ञा मानो, जप और तप करो और अपने घर में रहो। अब हो सकता है जी यही मैं एक फीमेल थी, उन्होंने इसलिए कहा हो। नहीं, ठीक कहा था उन्होंने भाई, बोल हर एक के लिए। उन्होंने कहा था, हाँ, बहुत अच्छी हो तो उन्होंने कहा था जी कि महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपने मन में चलने वाले विचारों को देखो। ये उनका सेंटेंस था। उन्होंने कहा था अपने मन में चलने वाले विचारों को देखो, और जब भगवान कोई चीज बता रहे हैं तो ये ध्यान से समझो कि वो तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं, और जो भगवान बता रहे हैं वो करो। उन्होंने कहा था जी कि जैसे गुरु और शिष्य होता है, तो उन्होंने कहा कि बेटा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वचनों का ध्यान रखना कि तुम्हारे गुरु तुमसे क्या कह रहे हैं और तुमको क्या करना है। ये चीज उन्होंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जीजा जी मुझे एक चीज अंदर से जानते हैं क्या फील आता है? मुझे एक चीज अंदर से ये फील आता है कि जो वरुण ने कहा था ना कि जैसे आप नाम जप करते हैं, जब इन चीजों को हम ज्यादा करने लगेंगे तो सेंसेस की जो ग्रिप है ये अपने आप ढीली हो हाँ, जाएगी। ये तो पक्की बात है, ये तो मैंने भी फील किया है, ये 100% करेक्ट। इसका रीजन जानते हैं क्या है? हमारा कुछ ना कुछ पकड़ने का नेचर है, ठीक? तो हमको बस पकड़ने में शिफ्ट करना है जी। जब हमको स्पिरिचुअल चीजें और जो भगवान हमसे कह रहे हैं, जब उन बातों की समझ हमको और अभी डीप में आ जाएगी, तो हमारा जो पकड़ने वाला नेचर है वो जैसे जैसे हम आध्यात्म को पकड़ने लगेंगे एक्चुअल में, वैसे जी सेंसेस अपने आप कम हो जाएंगी। हाँ, वो माया की ग्रिप कम करने का तरीका वही है कि भगवान की आंतरिक शक्ति या भगवान की पूजा और भगवान में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाओ, तो हाँ यस हाँ यस दैट इज देयर हाँ। कर्म है। तो जी मुझे ऐसा नहीं लगता कि सेंसेस से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि यही जानते हैं जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं तो हम उस चीज को ज्यादा पावर देते हैं। हाँ, ये बात तो बड़ा यार, यस यस, यू फीड द और एनर्जी। जी, और ये तो आपको और बताएं बात क्या होती है कि जैसे हम आपसे जो उस दिन कह रहे थे ना कि जिया जी हम लोग ये ना बोले बार बार कि ये चीज बहुत टफ है, कैसे कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे। ये जी इसका एक साइकोलॉजिकल मेथड है, और उस साइकोलॉजिकल मेथड में कुछ देर हमको
ये बैठ के अपने को सेल्फ टीच करना है कि नहीं, जैसे मैं दुनिया की चीजें, जैसे मैंने दुनिया की इंजीनियरिंग पढ़ ली, वो भी एक विद्या थी ना, तो मैंने पढ़ ली, मैंने समझ ली। अब गॉड जो कि हमें सारी एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं, तो जब वो बता रहे हैं, इनको भी जब मैं धीरे धीरे सुनूंगा, तो जितनी चीजें गॉड मुझे बता रहे हैं मैं सब कर लूंगा, क्योंकि गॉड तो एकदम मुझे सही चीजें बता ही रहे हैं। मैं एक दिन बिल्कुल कर लूंगा, बिल्कुल समझ आ जाएगी मुझे। तो यही चीज जब हम ये सेल्फ टॉक करेंगे, तो हमारा जो अंदर का डर है, वो चीजें अपने आप कम होने लगेंगी। इसी के साथ में मैं एक और चीज ऐड करना हम्म चाहूंगा कि हम्म ना, मैं ये इस टाइप के ऑटो सजेशन के जी साथ हम्म साथ आप प्रे भी करो भगवान से कि भाई मुझे आप, यू प्लीज करम है, मतलब हेल्प मी इन 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 ये दीज काइंड ऑफ आर्टिफिशियल जो डिफिकल्टीज मेरे माइंड में आ रही है ना, इसको खत्म करने के लिए जी ये बिल्कुल। वाला ऑटो सजेशन भी करो आप। और ये बिल्कुल ये बहुत जल्दी वैनिश हो जाएगा। यस, यू आर और राइट। ये आपको और बताएं, कोई ये जो हम प्रेयर करेंगे ना, हम्म। प्रेयर करने के बाद भी हमको ये विश्वास करना है कि बिल्कुल हमने भगवान से कहा ये चीज हो जाएगी, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, हो जाएगी। और वही श्रद्धा के साथ, जब बार बार आज कल शाम को भी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि जी जी श्रद्धा जो है बड़ा जरूरी है। जी श्रद्धा के साथ उनके इंजंक्शंस को फॉलो करना, जी जी कि जी जी। अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो हमको हम्म। रिजल्ट मिलेगा। जी जी, एक चीज आपको और बताएं, एक हम लोगों को अपने कॉमन सेंस से सोचना चाहिए। हम लोग यहाँ पे इलॉजिकल हो रहे हैं अपने प्रति, जानते हैं जी जी वो चीज क्या, मुझे लगता है जो हम इतने जन्मों से करते चले आ रहे हैं जी जी, है ना, उसको हम्म। इतनी जल्दी हटाने में भी टाइम तो लगेगा ना। एब्सोल्युटली करम है। यस। और जितना यस। हट चुका है, पहले उसके लिए हम अपने भगवान को धन्यवाद तो करें, जितना हट चुका है जिया जी। एटलीस्ट हाँ जिया जी हाँ। 0.001% कॉन्शियसनेस आई है, तो जीजा जी कितने जन्मों के बाद ये कॉन्शियसनेस आई है, पहले उसके लिए तो गॉड को थैंक्स बोल दें, फिर थोड़ा रोना बाद में रो लेंगे, हाँ 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 है हाँ ना हाँ। जी। अरे भाई, अगर आप पूरी माया की ग्रिप में रहते हैं तब तो यू आर गोइंग रियली डाउन। मतलब जी उन लोगों को समझ ही नहीं है, वो लगे पड़े हैं हाँ, अपने घर गाड़ी घोड़ा ये सब करने में। जी को बिल्कुल टोटली दे आर इन 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 दैट। वहां से तो हम लोग कहीं आगे आ तो गए हैं यार, बिल्कुल। इतना तो है। वी शुड अप्रिशिएट बस 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 बस। यस। यस। चलो क्या नाम है, आई थिंक इसमें क्या ना नाम है मैं जैसे हाँ कुछ हाँ, या। चीजें इसमें मैं भी मतलब कुछ चीजें मैं ऐड करना चाह रहा था। एक दैट। तो जो जैसा मैंने देखा है, मतलब मेरे को भी ये चैलेंजेस आते हैं, लेकिन भाई भगवत गीता में भगवान ने बहुत एनकरेज किया है, बहुत एनकरेज किया है उन्होंने बार बार। इसमें अगर इस पथ पे आप जो भी आगे बढ़ते हैं, छोटा सा भी बढ़ते हैं, उसमें कोई डेमिनेशन नहीं है, कोई लॉस नहीं है। एंड उसमें अगर आपने इसमें थोड़ी भी प्रोग्रेस कर ली है, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिगेस्ट डेंजर। अच्छा, फिर उसके आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जो माइंड है उसके साथ हर मनुष्य मेरा ही अंश है, और वो इन छह इंद्रियों के साथ, विच इंक्लूड्स द माइंड, उसके साथ स्ट्रगल कर रहा है। ये भी भगवान ने कहा है। बट ये भी कहा है कि भाई उस माइंड को आप डेलिबरेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आप कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि अर्जुन ने भी यही कहा था कि भाई मैं अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भगवान ने कहा कि अपने माइंड को इस डेलिबरेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कंट्रोल में ला सकते हो। और आपकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे को ये सही में ये याद रखना चाहिए, ये हमारे को जन्मों से, मिलियंस ऑफ बर्थ हमारे ये अर्थ इकट्ठा कर रखी है। चेतो दर्पणन जो है ये लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के 8 शिष्ट का अष्टकम है, सिर्फ 8 वर्ष है। उसमें पहला वर्ष शायद यही है, चेतो दर्पणम, कि मन पे मेरे मन पे धूल जमी हुई है मटेरियल क्वालिटीज की, ओवर मिलियंस ऑफ बर्थ, उसको मैं इस हरि नाम के जप से साफ करने की कोशिश कर, और कोई तरीका भी नहीं है। तो ये वाली बात आपकी बहुत अच्छी है कि भाई ये और कोई तरीका भी नहीं है, और वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर। एंड इसीलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने हमको लोगों को बड़ा अच्छा, मतलब ये वेरी नाइस। एंड इसीलिए इसमें भी देखे ना, सिमिलरली द डिवोटीज हु हैव टेकन शेल्टर ऑफ द लॉर्ड डू नॉट बिकम इन्फ्लुएंस्ड बाय द मटेरियल क्वालिटीज।
तो कम से कम हम अपना जितना टाइम इसमें लगा रहे हैं उस समय तो हम भगवान की शेल्टर हाँ में हाँ, हैं। ये यार, ये दिस इज द ग्रेटेस्ट पार्ट। उस जी समय तो और हम उसको बढ़ा रहे हैं, हम उसको जी। बढ़ा रहे हैं जितना हम्म कोशिश कर सकते हैं। हम्म नहीं नहीं, वेरी जी नाइस। तो थैंक यू नेक्स्ट फॉर मैं दैट। पढ़ता हूँ, जी। या तुम पढ़ लो, चलो वरुण। हाँ। मैं पढ़ लेता हूँ। हम्म, 39। हाँ। अम्मेनीरे बला मुद्धा स्त्रायणम चानुव्रतम्राः अप्रामाण विदो भर्तुर ईश्वरम मतयो यथा। Translation: The simple and delicate women truly thought that Lord Shri Krishna, their beloved husband, followed them and was dominated by them. They were unaware of the extent of the glories of their husband, as the atheists are unaware of him as the supreme controller. हम्म Purport: Even the transcendental wives of Lord Sri Krishna did not know completely the unfathomable glories of the Lord. This ignorance is not mundane because there is some action of the internal potency of the Lord in the exchange of feelings between him and his eternal associates. The Lord exchanges transcendental relations in five ways as proprietor, master, friend, son, and lover, and in each of these pastimes he plays fully by the potency of Yog Maya, the internal potency. He plays exactly like an equal friend with the cowherd boys or even with friends like Arjun. He plays exactly like a son in the presence of Yashoda Mata. He plays exactly like a lover in the presence of the cowherd damsels. And he plays exactly like a husband in the presence of the queens of Dwarka. Such devotees of the Lord never think of the Lord as the supreme, but think of him exactly as a common friend, a pet son, or a lover or husband very much dear to heart and soul. That is the relation between the Lord and his transcendental devotees, who act as his associates in the spiritual sky, where there are innumerable Vaikuntha planets. When the Lord descends, he does so along with his entourage to display a complete picture of the transcendental world, where pure love and devotion for the Lord prevail without any mundane tinge of lording it over the creation of the Lord. Such devotees of the Lord are all liberated souls, perfect representations of the marginal or internal potency in complete negation of the influence of the external potency. The wives of the Lord Krishna were made to forget the immeasurable glories of the Lord by the internal potency so that there might not be any flaw of exchange, and they took it for granted that the Lord was a hen-pecked husband, always following them in lonely places. In other words, even the personal associates of the Lord do not know him perfectly well. So, what do the thesis writers or mental speculators know about the transcendental glories of the Lord? The mental speculators present different theses as to his becoming the causes of the creation, the ingredients of the creation, or the material and efficient cause of the creation, etc. But all this is but partial knowledge about the Lord. Factually, they are as ignorant as the common man. The Lord can be known by the mercy of the Lord only, and by no other means. But since the dealings of the Lord with his wives are based on pure transcendental love and devotion, the wives are all on the transcendental plane without material contamination. Thus ends the Bhakti Vedanta purports of the first canto, 11th chapter, Srimad Bhagavatam, entitled Lord Krishna's Entrance into Dwarka. इस पे हम्म मैं ना कुछ चीजें भाई, ऐसे मैं पूरे सब कहना सब चाह बता रहा हूँ। दिया उन्होंने। हाँ, बताओ यार। यस हाँ, यस, हाँ। हम्म एक तो मैं मेरे को जो ये रिफ्लेक्शन आया कि यू सी, ये बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप है बिटवीन ए लिविंग एंटिटी एंड ए एंड गॉड। यू सी, हम्म जैसे कि हम लोगों को किस किस तरह की रिलेशनशिप पता है कि या तो भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर बन जाएं, जैसे हम भगवान के पास कुछ मांगने गए, ठीक, अच्छा, एक तो उस टाइप की रिलेशनशिप है कि मैं भगवान से कोई बेनेडिक्शन मांगू। दूसरी रिलेशनशिप जैसे और रिलीजन्स में है कि भगवान पनिश कर रहे हैं आपको, उल्टी सीधी चीजों के लिए पनिश कर रहे हैं। अच्छा, हम्म फिर एक और रिलेशन जैसे है कि भाई आप भगवान के, मतलब भगवान, या तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान है ही नहीं। बट ये रिलेशनशिप बड़ी यूनिक है कि आप, पहली बात तो कि भाई आप भगवान के बिल्कुल
भगवान खुद अपनी योग माया से अपने डिवोटीज को इस तरह कर देते हैं कि वो बिल्कुल उनको, गॉड को इक्वल टर्म्स पे देखते हैं कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, अरे ये तो मेरा बच्चा है, अरे ये तो मेरे ही हस्बैंड हैं, अरे ये तो मेरे मित्र हैं। मतलब एक बिल्कुल एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे भगवान वो रसा जो है इंजॉय करना चाहते हैं, जिसमें कि डिवोटी भी इंजॉय कर रहा है। इट्स नॉट जस्ट द लॉर्ड हु इज एंजॉयिंग इट। तो ये तो बहुत ही यूनिक है, बहुत ज्यादा यूनिक है ये एक्चुअली, और कोई रिलीजन में एक्चुअली में नहीं है। इवन हमारे रिलीजन में भी लोगों ने इसको ढंग से नहीं समझा है कि भाई ये तो एक्चुअली, अब जैसे यशोदा माई है, उनको दिखा भी दिया भगवान ने अपना मुंह खोल के, और उसमें सारा ब्रह्मांड भी नजर आ गया उनको। बट फिर भी वो माँ कह रही है अच्छा ठीक है मुंह बंद करो और जाओ जाओ जाके खेलो, और बार बार ये सब मत करो। बस पैसे भगा रही है उन्हें। तो हाँ। एक तो मुझे ये एक तो बहुत लगा। अच्छा, दूसरी चीज जो अभी लास्ट वाले श्लोक में ना जैसे डिस्कस हो रही थी कि अबाउट प्योर डिवोटी, उसमें मैं कुछ दिनों पहले जो मौसी आपने कहा ना, वो मैं मेरे को वो वाली बात भी याद आई कि भाई आप जो हैं, आप रिजल्ट से मत कंपेयर करिए कि आपका भक्ति में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। आई थिंक दैट इज द डेफिनेशन इन सम वेज ऑफ प्योर भक्ति की तरफ हम लोग भी, जैसे कि अब हम लोग के ऊपर भी ऐसे विपदाएं और वो सब आता रहता है, बट फिर भी हम ये कर रहे हैं, फिर भी हम ये कर रहे हैं, सुबह बैठ के पढ़ रहे हैं, फिर भी हम भगवत गीता की क्लास कर रहे हैं। अच्छा, अदरवाइज अगर हमारे अंदर वो भाव होता कि यार मैं किसी और मटेरियल गेन की वजह से कर रहा हूं, तो हम इतना नहीं सस्टेन कर पाते, अब हम इसको इतना नहीं खींच पाते। इसलिए वो प्योरिटी काफी हद तक आ गई है विदाउट रियलाइजिंग। जैसे कि जो कि जिसका रिप्रेजेंटेशन जो आप कह रही थी मौसी की, भाई हम रिजल्ट से नहीं गैदर कर सकते कि कितना आपने प्रोग्रेस करी है भक्ति में। बिल्कुल। तो ये मुझे दो चीजें ऐसे ही मेरे को लगा। तो बाकी तो भाई ये तो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल है, यू सी, इतना गजब की भगवान की लीला है कि जो जो लोग नहीं मानना चाहते उनको बेविल्डर करने के लिए ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये तो किस तरह के हैं, हैंड पैक्ड हस्बैंड हैं, बीवी के बिल्कुल जोरू के गुलाम हैं। और वही जो प्योर डिवोटी है वो इसको देख के इतना खुश हो रहा है कि देखिए भगवान ने कैसे योग माया में सबको डाल रखा है ताकि वो एंजॉय कर रहे हैं, और डिवोटी भी इंजॉय कर पा रहा है। क्योंकि अगर बिल्कुल। डिवोटी डिवोटी अगर उनको और रेवरेंस से देखेगा ना, तो फिर वो उनको प्यार नहीं कर पाएगा ना, फिर तो बिल्कुल सिर्फ ये रहेगा कि अरे ये तो बहुत बड़े सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। तब फिर वो उनको बच्चे की तरह नहीं ट्रीट कर पाएगा, तब वो उनको लवर की तरह नहीं ट्रीट कर पाएगा, तब वो उनको फ्रेंड की तरह नहीं ट्रीट कर पाएगा, और तो भगवान भी वो नहीं एंजॉय कर पाएंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। ये मेरा इम्प्रेशन है। आप देखो ना यार, यहाँ पे मतलब जो तुम लोगों ने कहा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, और प्रभुपाद का तो जो परपोर्ट है वो तो बहुत ही अच्छा है। अब अगर इसको देखा जाए ना, तो जो फंडामेंटल्स है कि ही इज द ओनली एंजॉयर एंड ही इज द ओनली प्रोपराइटर। अब जो लोग माया की ग्रिप्स में है, वो भी कर्म है, मतलब उनको टेम्परेरी एंजॉयमेंट मिलता है, वो भी कर्म है, लेकिन अल्टीमेट एंजॉयर इज द लॉर्ड। अच्छा, यहाँ पर जो प्योर डिवोटीज के साथ है, प्योर डिवोटीज आर इन परमानेंट ब्लिस। इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी दे आर इन परमानेंट ब्लिस। ये है फर्क कर्म है बिटवीन ए प्योर डिवोटी एंड जो जो ये जो आदमी कर्म है माया के साथ में, दोनों ही उनकी ही पोटेंसी है। लेकिन ये फर्क है कि भगवान अपने प्योर डिवोटी के को वहां से लेके आते हैं, यहाँ पे उनके साथ लीला करते हैं, और उनको अपनी योग माया से इन्फ्लुएंस रखते हैं, जबकि बाकी लोगों को अपनी महामाया, जिसको माया माया कहते हैं, उसके उसके इन्फ्लुएंस में रखते हैं। यू सी, इट इज नॉट दैट की कर्म है, मतलब वो है सारे ही उनके अंश, वी आर ऑल हिज कर्म है। ये जो है, ये भगवान की कुछ लोगों पे कृपा होती है। अब कर्म है वो तो हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि कैसे होती, क्यों होती है, और जो ये सब इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यशोदा माता वो जो है ना, वो भगवान की योग माया की शक्ति की वजह से दोनों ये एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब भगवान ही पार्शल है अपने प्योर डिवोटी के साथ, कि वो खाली वही एंजॉय कर रहे हैं और उनके डिवोटी नहीं एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं तो इसको तुरंत मेरा लड्डू गोपाल की तरफ ध्यान जाता है, जो लोग छोटे छोटे 11 11 12 12 साल के बच्चे
40-50 साल की औरतें वो गोद में हाथ में ले करके उनको बड़ा हाथ से ऐसे ऐसे करती रहेंगी, क्या मैं जैसे सहलाते हुए, ठंड तो नहीं लग रही है, जाड़े में ठंड लग रही है भगवान को, लाइक दैट, दैट इज द भाव जो है ना, जो डिवोटीज डेवलप कर पाते हैं, वो कहीं पर भी लॉर्ड के साथ में इस टाइप की किसी, आई एम नॉट कंपेयरिंग कर रहा, बट इस टाइप की चीज कहीं पर किसी भी रिलीजन में नहीं है। सच काइंड ऑफ पर्सनलाइज रिलेशनशिप as a friend, as a lover, as a son, as a mother. Oh my God, yeah, extremely beautiful, extremely beautiful, Yes. absolutely. भाई कम से कम मतलब कि एटलीस्ट वी ऑल एज एस्पायरिंग डिवोटीज हम इसको पढ़ के एक एंजॉय तो कर सकते हैं। मतलब कि उसी बाकियों में तो आपको बड़ा वैसे ही रहता है, या तो आपकी वो ऑर्डर गिवर टाइप की रिलेशनशिप है, या फिर आपकी बड़ी फियर वाली रिलेशनशिप है, या फिर पनिशमेंट, इसमें तो भाई भाई यू कैन भाई हैव वेरी somehow I feel कि क्रम है, मतलब जो भी, मैंने तो खैर कोई पढ़ा नहीं है मतलब इनके टेक्स्ट, बट मेरा जो इम्प्रेशन है यही कि दे आर वेरी ड्राई लिटरेचर्स, मतलब काफी ड्राई है, और उसमें लोगों ने काम नहीं किया फ्रॉम ह्यूमन एंगल। लोगों ने क्रम है जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर्स है, जो पोप वगैरह ने, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर, बट या तो हाँ, बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित है ना, तो जी। मेरा मेरा नंबर है मेरे ख्याल में, नहीं आपका नंबर है तो है? हाँ, यस। बिल्कुल। टेक्स्ट वन, शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपस्त्रीष्टेन ब्रह्मशीर्षोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। The sage Shaunaka said, the womb of Uttara, mother of Maharaja Parikshit, was spoiled by the dreadful and invincible Brahmastra, weapon released by Ashwatthama. But Maharaja Parikshit was saved by the Supreme Lord. Purport: the sages assembled in the forest of Naimisharanya inquired from Suta Goswami about the birth of Maharaja Parikshit. But in the course of narration, other topics like the release of Brahmastra by the son of Drona, his punishment by Arjun, Queen Kunti Devi's prayers, and the Pandavas' visit to the places where Bhishma Dev was lying, his prayers, and thereafter the Lord's departure for Dwarka were discussed. His arrival at Dwarka and residing with 16,000 queens, etc., were narrated. The sages were absorbed in hearing such descriptions, but now they wanted to turn to the original topic, and thus the inquiry was made by Shaunak Rishi. So the subject of the release of Brahmastra weapon by Ashwatthama is renewed. यहाँ पे देखो ना, फिर से क्रम है, अपने ऑडियंस को रिमाइंड कर रहे हैं व्यासदेव कि ये जो है वहां पे नैमिषारण्य में हो रहा है, यहाँ पर की gathering of so many rishis who is represented by Shaunak Rishi, and वो सूता गोस्वामी बैठे हैं आसन पे, जो कि क्रम है उनके शिष्य थे सुखदेव महाराज के, जिन्होंने ओरिजिनली वो भागवतम को अपने फादर से सुना था। तो वो जो है उनके आंसर कर रहे हैं, और ये जो है एक तरह से परपोर्ट में ये प्रभुपाद जी हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप भी ये जितना आप पढ़ चुके हैं ना, उसको बीच बीच में याद करिए, मेडिटेट करिए कि क्या क्या हुआ है, कैसे नारद मुनि आए हैं और आकर के व्यास देव जी की जो व्यथा थी उसको दूर किया है, फिर नारद जी ने क्यों अपनी पिछले जन्म की कथा बताई है ना, फिर उसके बाद में क्या नाम है, किस तरह से सुखदेव गोस्वामी जो है वो छोड़ के भागे चले जा रहे थे, ये पता नहीं आ गया है कि नहीं आ गया, यस। और उसके बाद में फिर भागवतम की रचना की है उन्होंने, नारद जी ने, और फिर उसके बाद में कैसे भगवान ने जो है वो उनका भीष्म देव का प्रसंग आया है, भीष्म देव को क्यों लाया गया है इस कथा में, वो युधिष्ठिर महाराज जो है
उनको मतलब भगवान भी नहीं समझा पा रहे हैं, तो वो भगवान जो है सब अपने अपने जो डिवोटीज है उनको ग्लोरीफाई करने के लिए सब कर रहे हैं। वो ले करके हम्म, उनको भीष्म देव के पास ले जाते हैं। कई पर्पज हम्म, है भगवान के, वहां पर भीष्म देव को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो बाकी लोगों के सामने भी एक एग्जाम्पल खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद में फिर कुंती माता का ही उसमें बीच में प्रेयर आती है, जब वो फिर से जाने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद में अब ये जो है उसके बाद में उनका वहां पे द्वारका, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बीच बीच में आपको ये एक आध बार बीच बीच में रिफ्लेक्ट करते जाना चाहिए। इससे हम्म, बड़ा आपको आनंद आएगा। मैंने तो हम्म, ये फील किया है भाई। जब भी मैं कर में जरा भी इधर उधर मेरे को डिप्रेशन या कुछ होने लग जाता है ना, तो आई स्टार्ट कर मैं गोइंग बैक, आई स्टार्ट हम्म, गोइंग बैक कि भाई नारद मुनि ने क्या आए थे, वो उनको भी तकलीफ हो रही थी। और तरह तरह के विषाद कथा के रूप में जाने में का एक अलग ही फायदा है। हम्म, कथा रूप में ही अगर आप मतलब आप कथा रूप में ये देखना शुरू करें, या कथा रूप में आप भगवत गीता को भी देखना शुरू करें तुरंत, कि भाई किस टाइप का सीन है, कि भगवान जो है वो रथ पर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन की क्या हालत है, जैसे वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ना, उसको हम्म, उसकी फॉर्म में अगर आप वो करें तो भी आपको काफी शांति मिलेगी, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल तो मेरे जी। को ऐसा लगेगा कि यार ये तो बस खाली बताया उन्होंने, शौनक ऋषि ने पूछा, मुझे इस पे ये उनके प्रभुपाद के परपोर्ट में बड़ा पावरफुल लगा। हम्म, चलो नेक्स्ट आप पढ़ो करम राधा जी। हाँ। जी। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनम च यथैवासी वासीस प्रेत्य गतवान यथा। ट्रांसलेशन। How was the great emperor Parikshit, who was a highly intelligent and great devotee, born in that womb? How did his death take place, and what did he achieve after his death? Purport. The king of Hastinapur, now Delhi, used to be the emperor of the world, at least till the time of the son Emperor Parikshit. Maharaja Parikshit was saved by the Lord in the womb of his mother, so he could certainly be saved from an untimely death due to the ill will of the son of Brahma. Because of the age of Kali began to act just after assumption of power by Maharaja Parikshit, the first sign of misgiving was exhibited in cursing of such a greatly intelligent and devotee king as Maharaja Parikshit. The king is the protector of the helpless citizen and their welfare, peace, and prosperity, dependent on him. Unfortunately, by the instigation of the fallen age of Kali, an unfortunate uh, Brahman's son was employed to condemn the innocent Maharaja Parikshit. And so the king had to prepare himself for death within 7 days. Maharaja Parikshit is especially famous as one who is protected by Vishnu, and when he was unduly cursed by Brahma's son, he could have invoked the mercy of the Lord to save him, but he did not want to because he was a pure devotee. A pure devotee never asked the Lord for any undue favor. Maharaja Parikshit knew that the curse of the Brahman's son upon him was unjustified, as everyone else knew. But he did not want to counteract it because he knew also that the age of Kali had begun and that the first symptom of the age, namely degradation of the highly talented Brahmanas community, had also begun. He did not want to interfere with the current of the time, but he prepared himself to meet death very cheerfully and very properly. Being fortunate, he got at least 7 days to prepare himself to meet death. And so he properly utilized the time in association of Sukdev Goswami, the great saint and devotee of Lord. देखो ना आप, मेरे भाई को तो इसको मतलब हाँ बहुत ही सुंदर है। हाँ बताओ, भाई तुम पहले बता लो। यस। इसको इसको पढ़ के यूसी आपको एक्चुअली पता नहीं मौसी आपको थोड़ा पता है कि एक्चुअली ये किंग मतलब बहुत ब्रीफली कि ये किंग परीक्षित के ऊपर
किंग परीक्षित ने एक ब्राह्मण के साथ मतलब थोड़ा अभद्र व्यवहार किया, तो उसके बेटे ने इनको कर्ज कर दिया था कि भाई तुम्हें 7 दिन के बाद यू विल डाई। तो किंग अच्छा। परीक्षित फिर जाके ये यमुना नदी के बगल में जाके बैठ गए थे, और वहां पे ये पूरी ये श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। अच्छा। टू मीट शुक डेथ वेरी चेयरफुली एंड वेरी प्रॉपरली। हाँ। इसको पढ़ के मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, यू सी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, हम्म। हमारी डेथ आज से शायद कई सालों डेकेड्स के बाद आएगी या कभी भी आएगी, बट हम्म। ये पढ़ने से हमारे पे भी वही इफेक्ट होगा जो परीक्षित महाराज पे हुआ। टू मीट डेथ चीयरफुली एंड वेरी प्रॉपरली, जैसे आप मौसी कह हम्म। रही थी ना, कई लोगों को बहुत डर लगता है अपनी डेथ से, हम्म। क्योंकि बिल्कुल सही भी है। हम्म। बट ये इसको पढ़ के पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आई कि उसी दिस इज हम्म। व्हाट वी आर आल्सो डूइंग। हम पे भी हम्म। यही इफेक्ट हो रहा है हम्म। कि ये पढ़ के हमको भगवान से जुड़ने का, अपनी डेथ से पहले भगवान से जुड़ने का मौका मिल रहा है। हम्म। That's all that. भाई मेरे को तो यहाँ पे जो है ना, तुमने जो कहानी जो जो बताई है ना, जो एक्चुअल परीक्षित महाराज के साथ हुआ, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने यहाँ परपोर्ट में जो है ना, मतलब बहुत अच्छी क्रम है। मेरे को जो इंसाइट आई है कि एक्चुअली उसी क्या है, परीक्षित महाराज ने क्या किया, उन्होंने ही एक्सेप्टेड ए कैलेमिटी इमीडिएटली हम्म। एज ए ब्लेसिंग फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। इमीडिएटली ही सेड कि वो ब्राह्मण का लड़का जिसने श्राप दिया वो तो निमित्त है। ही डिड नॉट क्या नाम है, डिस्पाइट बीइंग क्या नाम है, यही हमें भी जो भी दुख आ रहा है हम्म। उसको तुरंत क्या नाम है, और कई श्लोकों में है भागवतम के, भगवत गीता में, कि वो जो है ना भगवान का बेनिडिक्शन ही है जो आपको दुख मिल रहा है। तो इमीडिएटली क्या नाम है, परीक्षित महाराज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, उसको उसको देखो, आपकी परीक्षित महाराज जो थे अपने ड्यूटी में लगे हुए थे, वो राजा थे और वो अपनी ड्यूटी में लगे रहे थे, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे। यट ही न्यू कि भाई कलयुग आ गया है और उसको मुझे छेड़ना नहीं है, मतलब आई डोंट वांट टू इंटरफियर, बिकॉज वो कलयुग भी भगवान की उत्पत्ति है। और उन्होंने क्या नाम है 7 दिन के अंदर में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और ही वॉज सो मतलब एग्जॉल्टेड कि सुखदेव गोस्वामी महाराज थॉट हिम ए फिट कैंडिडेट टू लिसन टू भागवतम, जो कि उन्होंने देवताओं को भी डिनाई कर दिया। हम्म। यू नो, तो ये है हम लोग के लिए सीख क्या। एक तो वरुण ने जो बताया वो बहुत ही अच्छी बात बताई कि सुखदेव गोस्वामी के तो 7 दिन का पता चल गया था, हमें पता नहीं, हमारे तो अभी अगले क्षण हो सकती है, हम्म। हमें तो हमारा तो कभी भी आ सकता है। काल जो है वो तो दैट इज इट द ट्रुथ, दैट इज ए ट्रुथ विच विल हैपन इवेंचुअली। ऑल्दो जो लोग लगे हैं माया में वो सोचते हैं यार क्या मरने मराने की बात कर रहे हो, बट द फैक्ट रिमेन्स ए फैक्ट, द ट्रुथ विल नॉट बी ऑल्टर्ड बाई दिस काइंड ऑफ मायावी थिंकिंग। तो जो है क्या नाम है, मतलब ये बड़ी सीख वाली बात है मेरे हिसाब से कि भाई आपको भगवान को बहुत बड़े, मतलब जो डिवोटी की अप्रोच और नॉन डिवोटी की अप्रोच, बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। और परीक्षित महाराज है सेट एन एग्जाम्पल। जी। जी जी, उसमें मुझे एक बात और लगती है। हाँ हाँ। वो बात हमको ये लगती है जी कि जैसे मान लीजिए हमारी लाइफ में जो परिस्थितियां आ रही हैं, ठीक, मान लीजिए हम अपने को ये बात टीच करते हैं। मान लीजिए जी कोई बहुत विपरीत परिस्थिति है, हम भगवान से बहुत प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान ये बहुत टफ है, प्लीज इसको हटा दीजिए। और जीजा जी अगर वो नहीं हटाते हैं तो हमको ये पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि इसी में हमारी भलाई है। देख लो आप, तुम तो बहुत, यस, इफ यू हैव रियलाइज एंड पुट इट इन प्रैक्टिस, तब तक जी। यही तो है भक्ति, और यही है तो क्या। लॉर्ड ब्रह्मा, यस, यही लॉर्ड ब्रह्मा की प्रेयर है, वही तात हाँ। ते अनुकंपम। मैं हाँ। वेट कर रहा हूँ, मैं आई पेशेंटली आई एम वेटिंग, अर्नेस्टली वेटिंग फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, तात ते अनुकंपम सुसमीक्षमाणो भुंजना एवात्मा कृतम। ऑल द टाइम सफरिंग द मिजरीज ऑफ लाइफ एज एज रिएक्शंस, कि मेरे ही बुरे कर्मों का फल है वो, जी। राइट।
ऑल द टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, हृद वाग वापुरभिर विधा इसके धनस बावजूद नमस्ते। हृद हम्म, वाग वापुरभिर, अपने हृदय से, अपने वाग बोली वाणी से, से और वाणी से, और वापुरभिर अपनी पूरी बॉडी से, बॉडी से। विधा धनस नमस्ते, मैं हम्म, भगवान को ओबिसियंस पे करते जा रहा हूँ। बिल्कुल। ऑल द टाइम सफरिंग द रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब ये जितने भी, वो थिंकिंग कि भाई वो मेरे पुराने कर्मों का, जन्मों का वो है, उसको हम्म, मैं मानते हुए फिर भी भगवान की मैं नमस्ते किए जा रहा हूँ। इससे क्या बिल्कुल। होता है, जीवेता मुक्ति पदा दया भाग। हम्म, इस तरह का जो पर्सन है, लिविंग एंटिटी है, वो हम्म, मुक्ति का राइटफुल ओनर हो राइटफुल हो जाता रहे है। हैं। हम्म, राइटफुल। ये ये ब्रह्मा जी एक ही जगह गारंटी कर रहे हैं। हाँ। ये ब्रह्मा जी ने लॉर्ड कृष्णा से कहा है, ये स्तुति करिए। तो और तो कहीं पे, अब ये आप समझ सकती हैं कि ये ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्रह्मा हम्म, जी इज द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो अब आप हम्म, जानती हैं कि भाई ये डिवोटी की तो बात रखते ही हैं भगवान। और एक डिवोटी कह रहा है कि ये राइट बन जाता है उस तरह के हम्म, आदमी का, तो मतलब आप हम्म, समझ सकती हैं कितना बाइंडिंग है ये। हम्म, नो। लॉर्ड के तो लिए कितना बिल्कुल आपने बाइंडिंग है भाई, वो बिल्कुल लॉर्ड के सही लिए है। कितना ऐसे बाइंडिंग इनके है, मुंह से, ब्रह्मा जी के मुंह से निकल ही नहीं सकता। ऐसा हम्म, नहीं निकल सकता भाई उनके मुंह से। हाँ। तो बिल्कुल। हाँ, बहुत अति सुंदर। और किसका नंबर है अब? मेरा 3। ओके। तद तद इतम श्रोतम इच्छामु गदितुम यदि मन्यसे, ब्रूहि नः श्रद्धा धनानम यस्य ज्ञानम अदच्युतः। We all respectfully want to hear about him, Maharaj Parikshit, to whom Sukhdev Goswami imparted transcendental knowledge. Please speak on this matter. Purport. Sukhdev Goswami imparted transcendental knowledge to Maharaj Parikshit during the remaining 7 days of his life, and Maharaj Parikshit heard him properly, just like an ardent student. The effect of such a bona fide hearing and chanting of Srimad Bhagavatam was equally shared by both the hearer and the chanter. Both of them were benefited. जैसे कि यहाँ पे all of us are benefited. हम्म, Out of the 9 different transcendental means of devotional service to the Lord prescribed in the Bhagavatam, either all of them or some of them or even one of them are equally beneficial if properly discharged. Maharaj Parikshit and Shukadev Goswami were serious performers of the first two important items, namely the process of chanting and the process of hearing, and therefore both of them were successful in their laudable attempt. Transcendental realization is attained by such serious hearing and chanting and not otherwise. There is a type of spiritual master and disciple must much advertised in this age. There is a type of spiritual master and disciple much advertised in this age of Kali. It is said that the master injects spiritual force into the disciple by an electric current generated by the master, and the disciple begins to feel the shock. He becomes unconscious, and the master weeps for his exhausting his store of so-called spiritual assets. Such bogus advertisement is going on in this age, and the poor common man is becoming the victim of such advertisement. We do not find such folk tales in the dealings of Shukdev Goswami and his great disciple Maharaj Parikshit. The sage recited Srimad Bhagavatam in devotion, and the great king heard him properly. The king did not feel any shock of electric current from the master, nor did he become unconscious while receiving knowledge from the master. One should not therefore become a victim of these unauthorized advertisements made by some bogus representative of Vedic knowledge. The sages of Naimisharanya were very respectful in hearing about Maharaj Parikshit because of his receiving knowledge from Shukadev Goswami by means of ardent hearing. Ardent hearing from the bona fide master is the only way to receive transcendental knowledge, and there is no need for medical performances or occult mysticism for miraculous effects. The process is simple, but only the sincere party can achieve the desired result. इसलिए ही ये श्रीला प्रभुपाद के बड़े पावरफुल वर्ड्स हैं, बिकॉज ये इज अ स्पिरिचुअल मास्टर। दैट इज व्हाई हिज वर्ड्स। अच्छा, एक चीज मैं और भी इसमें मुझे याद आई। यू सी एक्चुअली महाराज परीक्षित को हुआ क्या था, इनिशियली उनको लग रही थी बड़ी प्यास।
अच्छा, वो हम्म। पानी मांगने गए थे इस ब्राह्मण से, और उस ब्राह्मण शायद दे नहीं पाया था क्योंकि वो बहुत ध्यान में उसमें था, वो तब तब कर रहे थे समाधि वो। में था, कपाती। हाँ। हाँ, तब कर रहे थे वो। अच्छा, तो इन्होंने अभद्र व्यवहार कर दिया, उसके आगे तो पता है। अच्छा, लेकिन मैं जिस चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि यूसी महाराज परीक्षित को प्यास लगी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको ये हो गया, ये अभद्र व्यवहार, जिसकी वजह से ये हो गया। एक पॉइंट पे ऐसा आता है श्रीमद् भागवतम में जिसमें कि वो खुद बाय हिज ओन एडमिशन परीक्षित महाराज कहते हैं कि ना मुझे प्यास लग रही है, ना मुझे कुछ और हो रहा है, मेरे को तो सिर्फ ये श्रीमद् भागवतम सुनने से मेरे को आई एम गेटिंग सो मच नेक्टर कि आई आई हैव फॉरगॉटन कि मेरे को प्यास लगती भी है कि नहीं। तो हम्म, माय पॉइंट बीइंग कि जब उनका प्यूरिफिकेशन हो गया उसमें भी, मतलब जो जिस वजह से स्टार्ट हुई थी, जो सेंस नहीं कंट्रोल कर पाए थे, वो जिसकी वजह से ही गॉट इनटू दिस प्रॉब्लम, वो श्रीमद् भागवतम सुनते सुनते उनका वो भी प्यूरिफाइड हो गया। एंड ये मैं आई कैन ऐसे ही मुझे आज याद आया कि उसी हम लोगों के अंदर भी अपने अपने तरह से हुआ है। जैसे कि भाई पहले मैं, आई इन माई ओन एडमिशन, आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड अबाउट नॉट गेटिंग फूड एट द राइट टाइम, मतलब कि मेरे को थोड़ा सा उसमें मैं मतलब बड़ा परेशान हो जाता था। हम्म, अब जबकि मैं टू टेल यू ऑनेस्टली, आज मैंने एक जगह फूड में ऑर्डर भी किया, घर लाया, उन्होंने गलत फूड दे दिया, हम्म, फिर मुझे वापस जाके मैं फिर भी उसके सही करा के फिर मैं ले आया, बट आई वॉज नॉट, ठीक है मैं डिसअपॉइंटेड था, बट आई डिड नॉट लूज माई टेम्पर। अच्छा, दूसरी चीज कि मैं भाई अब हर 2 हफ्ते में मैं ये वेरी हैप्पीली एकादशी का व्रत कर पा रहा हूँ, जबकि हम्म, पहले मैं जन्माष्टमी का भी व्रत करने में मुझे बड़ी तकलीफ होती थी मुझे। हम्म, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसके इफेक्ट हो रहे हैं, हम्म, इसके जो इस प्रोसेस के, जैसे आपने भी कहा ना मौसी, 0.01 एक्चुअली हम लोग रियलाइज नहीं करते, बट इसके इफेक्ट्स हो रहे हैं, हम्म। इसके क्लेंजिंग इफेक्ट्स, प्यूरिफाइंग इफेक्ट्स डेफिनेटली हो रहे हैं। वरुण, असल में हमने ये चीज साइकोलॉजी में पढ़ा है कि जिस चीज के बारे में आप जितना सोचते हैं उसका हम्म। आपके ऊपर इतना इम्प्रेशन होता है। तो अगर हर समय हम लोग ये 100%। सोचेंगे ना वरुण कि हम तो भैया सेंसेस में लगे हुए हैं, हम तो इन चीजों को कर नहीं पा रहे हैं, उससे बेटर है वरुण कि हम ये सोचे कि अब हम कुछ तो कर पा रहे हैं, कुछ तो हम, बिल्कुल है ना वरुण? भाई, ये ये एक्चुअली मौसी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पापा ने मुझे बहुत पहले यही बिल्कुल सिमिलर, ये साइकोलॉजी का ये जी, कंसेप्ट एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का आर्टिकल भेजा था, उसमें उसने जी, बिल्कुल यही बात कही थी। जो हम्म, चीज पे आप कॉन्शियसली सोचेंगे वो ग्रो हाँ, करेगी। तो हाँ, वो प्रिंसिपल मैंने अपनी लाइफ में लगाया कि मैं भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोच सकूं, मैं बिल्कुल, जितना टाइम लगा सकूं। अब हाँ, मैं वो तो नहीं कंट्रोल हो पाए नहीं हो पाए, बट मैं जितना ज्यादा टाइम, तो मैंने अपने साथ वही किया कि भैया एग्रेसिवली कि भैया चलो चैंटिंग करो, अच्छा चलो हम्म, मतलब सुबह सुबह मंदिर चले जाओ, अब जैसे हम्म, ये क्लासेस में पार्टिसिपेट करो जबरदस्ती। हम्म, तो एंड इट हैज मतलब कि ये आप देख ही रहे हैं, मतलब कि इट हैज ग्रोन, मतलब भगवान। बिल्कुल अब वो यस, इट्स नहीं नॉट, होता। इट्स फार फार अवे फ्रॉम आइडियल, that is for हम्म, sure, but हम्म, it is also far far away from where I was 3 4 years हम्म, ago. That is also the case. It is बिल्कुल, far far away from where I was. बिल्कुल। भाई आप ये देखो ना, मतलब कि जो छोटी सी बात है, वो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम 24/7 नॉन स्टॉप सुना है। उन्होंने हम्म, सुना है और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया है। हम्म, कोई वो ऐसा नहीं था कि एडजोर्न हो गया शाम को, रात में खाना खाने के लिए। बोथ ऑफ देम वर हम्म, इन कंप्लीट अनअवेयर अवेयरनेस। वो Ecstasy. दोनों को ही वो मतलब ट्रांसीडेंटल, वो एक्सटेसी में ही रहे पूरे टाइम। और अल्टीमेटली बड़ा बहुत ही वो ये चीज, मतलब आपको भी धीरे धीरे कभी लगने लगेगा कि यार हम जो है ना अब इसको और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें, क्या नाम है, ये आपके अंदर में भी आने लग जाएगा। बिल्कुल, है ना, कि आपको जो एक आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, वो हो गया है वो। जब उन्होंने कहा सब भगवत कृपा है, और तुमने, यस, दैट इज व्हाट मेक्स द लॉर्ड फैसिलिटेट्स इट। तो अब हम्म, इसके बाद में किसका नंबर आपका है? टर्न। हाँ। आपका टर्न। हाँ, तो ये है।
अपीपल धर्मराज सुतवाच अपील पल धर्मराज पितृवद रज्जयन प्रजा निष्प्रिय सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया. Sri Suta Goswami said, Emperor Yudhishthir administered generously to everyone during his reign. He was exactly like his father. He had no personal ambitions and was freed from all sorts of sense gratification because of his continuous service unto the lotus feet of Lord Krishna. Purport: as mentioned in our introduction, there is a need for the science of Krishna in human society for all the suffering humanity of the world, and we simply request the leading personalities of all nations to take to the science of Krishna for their own good, for the good of society, and for the good of all people of the world. So it is confirmed herein by the example of Maharaja Yudhishthir, the personality of the personality of goodness. In India, the people hanker after Ram Rajya because the personality of Godhead was the ideal king, and all other kings or emperors in India controlled the destiny of the world for the prosperity of every living being who took birth on earth. Here in the word, praja is significant. The etymological import of the word is that which is born. On the earth, there are many species of life from the aquatics up to the perfect human beings. And all are known prajas. Lord Brahma, the creator of this particular universe, is known as the Prajapati because he is the grandfather of all who have taken birth. Thus, praja is used in a broader sense than it is now used. The king represents all living beings, the aquatics, the plants, trees, reptiles, birds, animals, and man. Every one of them is a part and parcel of the Supreme Lord. Bhagavad Gita 14.4. And the king, being the representative of this, because the Supreme Lord is duty bound to give proper protection to every one of them. This is not the case with the presidents and dictators of this demoralized system of administration, where the lower animals are given no protection while the higher animals are given so called protection. But this is a great science which can be learned only by one who knows the science of Krishna. By knowing the science of Krishna, one can become the most perfect man in the world. And unless one has knowledge in this science, all qualifications, doctorate, diplomas acquired by the academic education are spoiled and useless. Maharaja Yudhishthir knew this science of Krishna very well. For it is stated here that by continuous cultivation of this science or by continuous devotional service to the Lord Krishna, he acquired the qualification of administering the state. The father is sometimes seemingly cruel to the son, but that does not mean that the father has lost the qualification to be a father. A father is always father because he always has the good of the son at heart. The father wants every one of his sons to become better men than himself. Therefore, a king like Maharaja Yudhishthir, who was the personality of goodness, wanted everyone under the administration, especially human beings who have better developed consciousness, to become devotee of the Lord Krishna, so that everyone can become free from the trifles of material existence. His motto of administration was all good for the citizens, and for personified goodness, he administration on that ground and the principle, and not on the Rakshasi demonic principle of the sense gratification. As an ideal king, he had no personal ambition, and there was no place for sense gratification because all his senses at all times were engaged in the loving service of the Supreme Lord, which includes the partial service to the living beings who form the parts and parcel of the complete whole. Those who are busy rendering service to the parts and parcels, leaving aside the whole, only spoil time and energy, as one does when watering the leaves of a tree without watering the root. If water is poured on the root,
the leaves are enlivened perfectly and automatically. But if water is poured on the leaves only, the whole energy is spoiled. Maharaja Yudhishthir, therefore, was constantly engaged in the service of the Lord, and thus the parts and parcels of the Lord, the living beings under the careful administration, were perfectly attended with all comforts in this life and all progress in the next. That is the way of perfect management of state administration. ये बताया इन्होंने कृष्ण साइंस ऑफ कृष्णा, हाउ साइंस ऑफ कृष्णा वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय किंग युधिष्ठिर, that by being a devotee he became a perfect administrator also, who took care of human beings, reptiles, birds, trees, and everything. And there is a teaching for us by being devotees, we also become perfect human beings. इसी क्रम है, मतलब कि साइंस ऑफ कृष्णा जो है उसको पढ़ना, सुनना, प्रैक्टिस में लाना, यही लाइफ का मिशन है। और आप इसे अपना डे टू डे काम करते हुए भी आप यू आर ऑल द टाइम कनेक्टेड टू सुप्रीम लॉर्ड। एंड वो जो बाकी पेड़ में की पत्तियां और शाखाएं और टहनी वो अपने आप ही सिंचित हो जाएंगी। भगवान को जब आप साइंस ऑफ कृष्णा के हिसाब से वो आप इफ यू आर मतलब वाटर उनके रूट्स में डालते रहेंगे ना, भगवान को को ध्यान में रखेंगे कोई भी कर्म करने से पहले, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी टेकन केयर ऑफ, योर सन विल बी टेकन केयर ऑफ, यू विल बी मतलब जो जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिसका आप भला चाहते हैं, तो वो अपने आप ही हो जाएगा। यू नीड नॉट डू एनीथिंग एल्स। वो मतलब भगवान फिर देन you surrender to the Lord and Lord takes care of your interest, as simple as that. एक चीज और भी इसमें ये समझ में आती है कि भाई जैसे कई लोग मतलब हर आदमी किसी न किसी को फॉलो करता है, किसी न किसी को तो फॉलो करता है, राइट? अब अगर आप एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू फॉलो समबडी हु इज इन नोइंग ऑफ ये साइंस ऑफ कृष्णा, डिवोशनल सर्विस। अदरवाइज तो जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई अगर वो ये नहीं है तो फिर उसकी सेंसेस उसके कंट्रोल में नहीं है, तो सेंसेस कंट्रोल में नहीं है तो फिर वो आप पर्सन भी परेशान है, तो वो आप भी परेशान होगे इवेंचुअली, आप उसको फॉलो करते रहोगे अनटिल अनलेस जिसको भी आप फॉलो करें, है ना, तो वो एटलीस्ट ही शुड बी इन लव विद लॉर्ड कृष्णा, शुड बी इन लव विद एक डिवोशनल सर्विस कर रहा हो, राइट? नहीं तो अदरवाइज उसको फॉलो करने का बहुत कोई आपको लाभ नहीं होगा, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। चाहे आप पॉलिटिशियंस लगा लें, चाहे ये तो हम लोगों ने देखा हुआ भाई, तरह तरह के आइकॉन्स क्रिएट कर दिए हैं। फिल्म वर्ल्ड हैज क्रिएटेड आइकॉन्स, then technical world, industrial world has created icons. Narayan Murthy and Ratan Tata here in India, abroad में Steve Jobs और क्या नाम है जितने बड़े बड़े इन्होंने ये आविष्कार किया, इन्होंने ये आविष्कार किया, लोगों ने उनको आइकन बनाया हुआ है, आर्किमिडीज और दिस एंड दैट, ऑल्दो दे वर ग्रेट फिलोसोफर्स, क्या नाम है, बट उनके उस एस्पेक्ट को सप्रेस करके उन्होंने बाकी चीजें जो उनके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को, उनकी देयर नियरनेस टू गॉड को नहीं हाईलाइट किया है, यू सी। अच्छा, और ये जो है आप जो है फिर तो, और इसके अलावा भी और ये हेल्प बुक्स जो आ रही हैं, यू कैन विन मतलब या पावर ऑफ नाउ एंड ऑल दैट, तो उससे क्या है कि आप जो है फिर माया की तरफ ही ठेलते हैं, ये सब टाइप की चीजें माया की तरफ ही ठेलती हैं आपको, बिकॉज वो यही सिखाती हैं बस भाई भैया सेंस एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए आप और करिए ये, मतलब और माया की गिरफ्त में आइए, और माया की गिरफ्त में आइए, और उसके अंदर में एक्सप्लॉइटेशन तो बिल्ट इन है, एक्सप्लॉइट करोगे तभी वो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जगह जगह पहाड़ को खोद खोद के सड़कें बना रहे हैं, पहाड़ को खोद के। अब आप देखो कि एक्चुअली अब मैं फिर से गोइंग बैक टू ये, अभी आप इन लोगों को देखो, इतना पैसा कमाओ फिर ये सब खर्च करो तो आप सेंस प्लेजर मिलेगा, ओके, एक वो तरीका है, मान लीजिए आप, ठीक,
यहाँ पे आप ये किताबें पढ़ लो, ये वाली किताब पढ़ लो, आपको इतना ज्यादा प्लेजर मिल रहा है ये किताब पढ़ने से। हम्म, वहां पे वो सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित सिर्फ वो मतलब वो यही श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं और उनको इतना प्लेजर मिल रहा है, हम लोगों को इतना प्लेजर मिल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट कोई एफर्ट करना पड़ रहा है? कोई एफर्ट हम्म, नहीं करना पड़ रहा है, बट यू हैव टू जस्ट सिट एंड रीड। भगवान के तरीके, अगर आप भगवान में आप कन्विंस्ड हो गया हूँ, भगवान के तरीके में यू विल गेट फार फार मोर। मतलब क्योंकि वो रूट है ना, वो व्हेन ही इज प्लीज्ड देन ही इज ऋषिकेश, देन यू विल आल्सो गेट प्लेजर। हम्म, अदरवाइज आप अपने तरह से लगे रहो, अपने तरह से लगे रहो उसमें तो हम्म, लगे रहो। एक और पढ़ना है या बंद करेंगे? एक और पढ़ सकते जी। हैं, हाँ पढ़ आप सकते हैं। पढ़ो राधा जी, आप पढ़ो, है ना, हाँ, आप ही पढ़ करना रहे है। थे। हाँ, ये मैं वहां तक पहुंच जाऊं। टेक्स्ट 5 है। हाँ जी हाँ जी। देख। जी। हाँ। संपदा क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बू द्वीप आदि पतम च यशस्व त्रिदिवम गतम। Translation. News even reached the celestial planet about Maharaja Yudhishthir's worldly positions, the sacrifices by which he would attain a better destination, his queen, his stalwart brothers, his extensive land, his sovereignty over the planet Earth, his fame, etc. Purport. Only a rich and great man's name and fame are known all over the world, and the name and fame of Maharaja Yudhishthira reached the higher planet because of his good administration, worldly possessions, glorious wife Draupadi, the strength of his brother Bhim and Arjuna, and his solid sovereign power over the world, known as Jambudip. Here, the word loka is significant. There are different loka or higher planets scattered all over the sky, both material and spiritual. A person can reach them by dint of his work in the present life, as stated in Bhagavad Gita. No forceful entrance is allowed there. The tiny material scientists and engineers who have discovered vehicles to travel over a few thousand of miles in outer space will not be allowed entrance. That is not the way to reach the better planets. One must qualify himself to enter into such happy planets by sacrifice and services. Those who are sinful in every step of life can expect only to be degraded into animal life to suffer more and more pangs of material existence. And this is also stated in Bhagavad Gita. Maharaja Yudhishthira's good sacrifice and qualifications were so lofty and virtuous that even the residents of the higher celestial planets were already prepared to receive him as one of them. Hmm. एक मिनट, नहीं, इसमें जी जी हम्म यही कह रहे हैं कि जैसे हम्म इन्होंने एक बताया है कि एक सिस्टम है। जैसे जी जी जो साइंस ऑफ कृष्णा पढ़ाया था ना, उसका मतलब भी यही है कि जितनी भी चीजें चल रही हैं वो रूल बेस्ड है। हम लोगों को वो इलॉजिकल लगती है, वो एक अलग बात है। और ये जो यहाँ पे कह रहे हैं कि those who are sinful in every step of life expect only to be degraded into animal life to suffer more and more pangs of material life, and this is also stated in this. और जी इनका कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो कोई चीज मांगते हैं वो मांगना बेकार है। आप कर्म ऐसे करिए कि जिसके परिणाम में वो चीज आपको मिल जाए। देखिए लास्ट सेंटेंस, महाराजा युधिष्ठिर गुड सैक्रिफाइसेस and qualifications were so lofty and virtuous that even the residents of the higher celestial planets were already prepared to receive him as one of them. एवरीथिंग इज, तुमने दो तीन बातें बड़ी बिल्कुल फंडामेंटल बताई हैं। एक तो साइंस ऑफ कृष्णा के बताया, बारे में बताया है कि भाई ये रूल बेस्ड है ऑल दैट। हम्म, अच्छा, बिल्कुल बहुत पक्की बात है। दूसरा जो हम्म, है इसके अंदर में से ये निकल के आ रहा है कि एवरीथिंग इज एमिनेटिंग फ्रॉम द प्योर डिवोशनल सर्विस ऑफ किंग युधिष्ठिर टू द हाँ, सुप्रीम लॉर्ड। सो हाँ, even the celestial planets के भी denizens, they are lined up to receive him, you know.
है मतलब कि भाई अब ये महाराज युधिष्ठिर की जो यश है और हम्म। उनकी वजह से उनके भाइयों का यश जो है वो हम्म। तीनों लोकों में पहुंच चुका है। ये चीज बिल्कुल। बताई है कर्म में कि भाई वहां पे जगह जगह ये बातें हो रही है। टिल डेट कर्म में वी आर टॉकिंग अबाउट किंग युधिष्ठिर एंड हम्म। सुखदेव गोस्वामी एंड कर्म है मतलब वो वहां तक पहुंच गया। ये कौन ये सब बातें बता रहे हैं? अब चालू हो गए हैं सूता गोस्वामी ऑन बिहाफ ऑफ सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को बताया हुआ था जो उस टाइम का सिचुएशन थी वो सूता गोस्वामी वहां पे नैमिषारण्य में लोगों को बता रहे हैं हम्म। कि भाई ये जी। उस ये जो है ना जब जब महाराजा युधिष्ठिर का जो टाइम था वो इस तरह का था, इतना ट्रैंक्विल टाइम था। इस तरह हम्म। के ट्रैंक्विल टाइम और अभी आगे बताएंगे और आएगा, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी कि कैसे हम्म। बहुत ही सुंदर है आगे चल हम्म। के कि कैसे जी। वो मतलब आई डोंट वांट टू फिनिश इट ऑफ। तो वो हम्म। बड़ा सुंदर आएगा कि क्या नाम है ये आजकल क्या लोग फिल्में बनाएंगे जिस तरह से ये यहाँ पर कथा डेवलप हो रही है मतलब हम्म। इन सच ए जी। ब्यूटीफुल ये फॉर्मेट। तो हम्म। ये जी एक सेंटेंस और भी है। वन हाँ। मस्ट वन मस्ट क्वालिफाई हिमसेल्फ टू इंटर इनटू सच हैप्पी प्लैनेट्स बाय सैक्रिफाइस एंड सर्विस। हम्म यस। सेक्रीफाइस ये मतलब जो सैक्रिफाइस के ना बारे में ना। सेक्रीफाइस एंड सर्विस। देखो ना तप और कर में मतलब तप करने के बड़ी महिमा है। तप हम्म। बिना किए हुए वो आप कर्म है वो जो है वो नहीं प्राप्त कर सकते उस टाइप की ब्लिस। हम्म। ज्ञान और वैराग्य जो जो है ना जो कहा गया वैराग्य का मतलब यही है कि आपको जो तपस्या है वो वैराग्य करना जो क्योंकि आपको छोड़ना है क्रम चीजों को उस सेंस में हम्म। विदाउट क्रम है मतलब आपको अटैचमेंट को गिव अप करना है क्रम है मतलब तप और तपस्या और जो तो यहाँ पे जो तुम वर्ड बता रही क्या कह रही थी ना कि मतलब भाई क्या किस चीज से बता रही थी दो चीजें। सैक्रिफाइस एंड सर्विस। हम्म। हाँ आप देखो ना इसके बारे में ना, सेक्रीफाइस जो है हाँ हाँ बताओ। नहीं नहीं, इसके बारे में लॉर्ड कृष्णा ने बड़ा सिंपल एक भगवत गीता में श्लोक कहा है जिसमें कहा है कि बिना सैक्रिफाइस के तो इस जीवन में आपको कोई सुख नहीं मिल बहुत सुंदर सकता। है बहुत सुंदर। व्हाट टू स्पीक ऑफ द नेक्स्ट लाइफ। हम्म। जो लोग इस समय भूले पड़े हैं, जो हम्म। सेल्फिश बिल्कुल टू द कोर हो चुके हैं, वो भैया अरे बिना भैया इस सबसे सेक्रिफाइस के इस जीवन में सुख नहीं पॉसिबल है। अगले सब जीवन का तो यही छोड़ ही सबसे दो। बड़ा चैलेंज है कि हाउ हम्म। टू सेक्रीफाइस करने के लिए कोई तैयार नहीं है भाई सबसे बड़ा वही है। इस शरीर को सेक्रीफाइस कर मतलब शरीर छोड़ने में तभी तो होता है ना नहीं, अब तो आदमी। उन्होंने सारे लॉज बना लिए ना कि अब तो ये हर मेरी हैप्पीनेस इज माय राइट। तो हम्म। लॉज बना रहे हैं वो धड़ाधड़ कि मेरी हैप्पीनेस इज माय राइट। पहले उसका देखिए ना दूसरे हमारी दूसरे फैमिली की में, हैप्पीनेस को हाँ। हम्म। हम पहले हमारी फैमिली में सेक्रीफाइस वाज इन बिल्ट एक्चुअली। जॉइंट फैमिली में हर हम्म। किसी को एक दूसरे को मतलब तितिक्षुआ भी समझना भी पड़ता था, बर्दाश्त भी करना पड़ता था, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता था टुवर्ड्स द हम्म। एल्डर्स, टुवर्ड्स द एल्डर ब्रदर्स, टुवर्ड्स द पेरेंट्स। अब तो सब खत्म हो गया ना, तो अब तो सबके वही राइट्स तो हैं। मतलब ऐसा नहीं है सभी के सब कल वो डिस्कस कर रहे थे वो बताया गप्पूदा ने मजाक में ही बताया कि जी। अनपेड सर्वेंट्स एंड ऑल दैट हाँ, क्या नाम है। वो वहां पे हाँ, भी नहीं हाँ। है, वो यहाँ पे भी है। बाय द वे मैं कल बताना रह गया, वो यहाँ पे यूएस में भी है। यहाँ पे भी हम्म। वो पेरेंट्स के साथ यही है। हम्म। बट बिल्कुल सेक्रीफाइस के बिना नहीं है। पॉसिबल। वरुण, मैं सेक्रीफाइस और तप तप तपस्या को जानते हो किस फॉर्म में देखती हूँ? हम्म ये मेरे हिसाब से तपस्या और सेक्रीफाइस का मतलब है टू शिफ्ट माई कॉन्शियसनेस। तपस्या का वरुण मैं मतलब समझती हूँ कि जो हम अभी तक कई जन्मों से करते चले आए हैं उनको छोड़ के जो हमारा हम्म पर्पस है उसको अचीव करने के लिए कॉन्शियसनेस का शिफ्ट के लिए हम ये कर रहे हैं। यस, जो तपस्या बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने यही तो टाइम की तपस्या आहुति है। देना, बहुत अपने मुश्किल है टाइम बहुत अपने मुश्किल नहीं है टाइम कुछ की भी अपने मुश्किल नहीं है यस। अपने टाइम की अपने सेंसेस की आहुति जो दे रहे हैं, एक तरह से आहुति तो दे रहे हैं। और दे रहे हैं ना बिल्कुल। आप वो जो टेम्परेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन को गेट गिव अप करके आप अपनी जी। कॉन्शियसनेस को उस तरफ चेतना को उस तरफ मोड़ रहे हैं। जी। तरफ मोड़ अभी रहे हैं। वो तभी चीजें तो मिलेंगी कि जिनको देख के हम भाव विभोर होंगे। भगवान के टच में जैसे जैसे आना शुरू करेंगे मेरे ख्याल में वही जो तुम लोगों ने कहा ना कि
ये 1 घंटे में भी जो फीलिंग है वो तो कम से कम है ना हमारी, वो तो हमारी जो भी डिवोशनल सर्विस का कुछ तो हम लोग हम तो एंजॉय कर रहे हैं भाई। बिल्कुल। हाँ, और उसी को हम प्रोलॉन्ग करते हैं। हम्म। यही हम्म। धीरे धीरे आगे ही बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे करम भाई, बिल्कुल, बढ़ेंगे वेरी ये मच। इसमें कोई शक नहीं है मौसी, क्योंकि हमने इसमें तीन कोई साल से नहीं। यही देखा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने देखा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिछले 3 साल में हम लोगों के ऊपर माया के अटैक्स नहीं आए या वो। और एक तो पहली बात, भगवान ने हर जगह बचाया, हर और जगह क्या। बचाया। और दूसरी चीज, बिल्कुल ये जो आपने कहा ना, बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है, कम हम्म। नहीं हुआ है। बिल्कुल। माया के चाहे कितने भी अटैक्स आते रहे, हम्म। बढ़ा ही है। बिल्कुल। चलेंगे भाई, है। जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।